Hello dear students. Okay, retirement chapter continue. Today question number 13 we are doing of textbook, page number 271. Okay, now highlight of this question is maintenance of capital only. Maintenance of capital. Okay, maintenance of capital by partners, those who are continuing partners. Okay, now on top of it there are one or two adjustments. Also gain when it is given in proportion, how to deal with it. All these things we will practice today's question. Let us check 13 question. Okay, sum check करें हम यहाँ पे. How many partners? वही 3 पार्टनर्स है. कौन कौन है? LBW. ओके, IPL स्टार्ट हो गया है ना, सबको थोड़ा सा जोश है. LBW are partners. Here old ratio is given to you, 2:2:1. Okay, capital, general reserve, पूरी balance sheet. Now here in this particular question, gain is given in, who retires? W, last partner. Huh? W retires. L and B will gain in this proportion, means gain is given in proportion. On top of it, amount which is due to W, W को जो पैसा देना है वो कैश में ही इधर पे कर देंगे, but the same amount will be brought in by L and W in such a manner that they maintain their capital in new proportion in new firm. न्यू PL में, न्यू फर्म में कैपिटल रखेंगे वो लोग, वो भी मेंटेनेंस ऑफ बोथ टुगेदर आर देयर. When retiring partner is to be paid in cash and the balance is maintained by the partners, continuing partners in new PL. 2 points together are there. Okay, so this is main highlight of the question. Step 1, prepare format, ready है. Revaluation account, partners capital account, then cash account, because maintenance of balance की बात है. जब भी मेंटेनेंस की बात नहीं होगी और पार्टनर को पे नहीं हो रहा होगा तो कैश की जरूरत नहीं होती है. एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ W. ओके, नाउ स्टेप 1 अभी भी पूरा नहीं हुआ, पहले अकाउंट बनाने और बैलेंस भी ले लेना है. तो बैलेंस ले ले. बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड. L का देखेंगे तो आपको 20,000, 12,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली है तीनों का. ऐसे ही कैश का भी मैं सिंपली बैलेंस ट्रांसफर कर रही हूं टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड. जस्ट हियर इट इज 2,000. ओके, so this way I have, if I try to put here, I have taken capital, even I have taken cash. इन दोनों की बैलेंस ट्रांसफर कर दिए. Let us go for step number 2, adjustment. एक बार फॉर्मेट ड्रॉ किया, बैलेंस ले लिए. अब एडजस्टमेंट नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000. अरे बुक वैल्यू देख लो बिल्डिंग की. बुक वैल्यू इज जस्ट 37,000. 37 की बुक वैल्यू हुई और मार्केट वैल्यू अगर 50,000 है तो सीधी सीधी बात है कि आपको यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हो रहा है. अकॉर्डिंगली इट हैज टू बी एडजस्टेड in what? In revaluation account as profit. 13,000 का revaluation account में प्रॉफिट दिखाएंगे. बाय क्या लिखूंगी मैं? सिंपल बिल्डिंग. सॉरी, here 13,000. Second effect of it definitely is shown in balance sheet. Balance sheet में market value building की दिखाएंगे. That is 50,000. Increased value. Okay, first adjustment complete. Second adjustment, book value of stock is 10% more than its cost. Stock is to be recorded at its cost. अब जो बुक वैल्यू है ना वो ऑलरेडी 10% ज्यादा है और हमको स्टॉक दिखाना कौन से वैल्यू पे? कॉस्ट पे है. सो केयरफुली इफ आई ट्राई टू टेल यू, हियर वैल्यू ऑफ स्टॉक इज, स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 5,500, which is 10% more than its cost, और रिकॉर्ड कॉस्ट पे करना है. So this is equal to 110, then cost 100 will be how much? If you see, it will come solve, so it will come to 5,000. मीन्स 500 रुपए हमको स्टॉक में ज्यादा है वो काटने पड़ेंगे. वन इफेक्ट, रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा, लॉस हो जाएगा. स्टॉक का 500
और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में स्टॉक इतना कम दिखा देंगे. नाउ 55 की जगह सिर्फ 5. वी हैव टू शो इट एट कॉस्ट. दिस वॉज अगेन गुड एडजस्टमेंट टू बी केप्ट इन माइंड. Let us go for adjustment number 3. Very interesting. Check it out very nicely. Personal expense of W. कौन पार्टनर है? W. 500 were debited to PL account. क्यों भाई? Personal expense थे तो who will bear? Partner will bear. पर भूल से PL में चले गए थे तो one cross effect. One effect revaluation में आप इसको लिखेंगे यहाँ पे by cross देना है. पहले डेबिट किया था आप क्रेडिट कर देंगे बाय पर्सनल एक्सपेंस. ये पहले भी की है पॉइंट इन एडमिशन ऑफ डब्ल्यू. हियर दिस अमाउंट वाज 500 जस्ट रुपीज. इधर क्रेडिट पार्टनर में डेबिट टू रिवैल्यूएशन. कौन से पार्टनर में? डब्ल्यू में 500. केयरफुली. ओके. So this way payment from him, his account will be debited and revaluation account will be credited to give it a cancelling effect. Okay. Now comes the main point. Goodwill. Total firm की 80 है तो हम W का शेयर निकालेंगे वो भी करेंगे और गेन भी आपको मिला हुआ है उसको भी चेक करेंगे और मेंटेनेंस भी करेंगे. So let us go for very nice नाउ कैलकुलेशंस ऑफ इट वन बाय वन. पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे फिर कैपिटल को भी बैलेंस आउट कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट न्यू रेशियो. ओके. देखो ओल्ड रेशियो इज गिवन टू अस LBW. ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:2:1. इवन गेन इज गिवन इन प्रोपोर्शन दैट इज गेन इज 5 क्योंकि ये रिटायर हो रहा है. W रिटायर्स. इसका गेन है 5/40. इसका गेन है 3/40. सिंपल. इतना तो दिया हुआ है हमको गेन इज गिवन. सो न्यू तो सिंपल वे से जाएगा. सो देयरफॉर न्यू PL मेंटेनेंस के लिए चाहिए ही चाहिए. न्यू PL विल बी ओल्ड प्लस गेन. ओके. ओल्ड प्लस गेन. पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे? L के लिए फाइंड करेंगे फिर हम B के लिए. दोनों के साथ साथ देखो टेक 2/5 प्लस गेन 5/40 प्लस गेन 3/40. ऑलरेडी दिस इज अवेलेबल टू अस. ओके. नाउ फाइंड आउट. सीधा LCM 40 निकालेंगे ना. गोज इन 5 हाउ मेनी टाइम्स? 8. 8 to the 16. 16 plus 5. This will come 21/40. Same manner. 8 2s are 16. 16 plus 3 19. 19/40. So therefore new PL is equal to 21:19, which will help us to maintain the capital. Now this was new PL. Goodwill करें. किसका शेयर? W share in goodwill. W share in goodwill. टोटल गुडविल इज गिवन 80. W का शेयर कितना है हमने नोट किया हुआ है ओल्ड 1/5. सो 1/5 कर दूं मैं इसको. 1/5 विल कम टू गुडविल्स रेशियो 16,000. इट कम्स टू 16,000. नाउ हियर बोथ पार्टनर्स गेन में कैसे करेंगे? 5:3. 16,000 will be borne by 5:3. That is 10,000 by L and by B 6,000 will be taken. So L's capital account debit, B's capital account debit to W. W will get 16. L will pay 10,000. B will pay 6,000. This way it will be set in. Okay. Now this one we will set in the sum. सम में इसका इफेक्ट दे दे गुडविल की एंट्री का. चलो रिपीटेडली वी आर गिविंग. W will get the amount. Okay. W will get by L's capital. L 10,000 दे रहे हैं W को तो W को क्रेडिट होगा. A 6,000 दे रहा है. सिंपली by B's capital. Here क्रेडिट डेबिट करेंगे. L 10,000 निकालने का अमाउंट और ये 6,000 टू W's कैपिटल. लिख सकते हैं ब्रैकेट में गुडविल. ओके.
अकाउंट, revaluation account, इस तरह से आप मेंटेन करते हैं. So this way goodwill's adjustment also we have given. मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस तो करेंगे जब शटडाउन होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप. बैलेंस शीट को क्लोज करने का थर्ड स्टेप पे चले जाएं. हियर कैपिटल वी हैव टेकन. नाउ जनरल रिजर्व 5000 कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स. ऑल रेशियो 2:1. तो जनरल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं. हियर 5000 को 2:1 में तो इजी ना. 2000, 2000 and 1000 respectively. Then comes next, that is creditors. Here next item creditors is given to us 20,000. There is no change in creditors. So again creditors will directly go to balance sheet. I hope you understand this. Repeatedly we are doing. Balance sheet में सीधा ही creditor लिख देंगे. No change. Old value will be brought here. Okay. Now after this outstanding expenses no change. ये 3000 के 3000 इधर आ जाएंगे. Outstanding expenses 3000. Okay. So I mean to say this side is complete. Liability. Now asset side. Goodwill. This old goodwill will be what we will do? Will be written off. किस में write off करेंगे? All partners which ratio? Old ratio. All partners old ratio. चलो write off करना है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है. टू गुडविल ब्रैकेट में चाहे तो राइट ऑफ कर लिख सकते हैं. 8000 है तो अमाउंट होगा 3200, 3200 and 1600 respectively. Okay. Goodwill written off. Old goodwill written off. हो गया. Next building we have already noted down. Debtors. There is no change. So bring it down only. Debtors को बैलेंस शीट में लिखेंगे. कोई चेंज नहीं है. Same 13,000. Okay, I have written 13,000. Next, stock we have already recorded. Cash will come from its account. So this is complete. Step number 3, balance sheet is over. Now shut down carefully. This side 13,000. पहले तो revaluation ही close होता है. Okay? Revaluation ही shut down होगा. Revaluation का difference आ रहा है 13,000. किसको distribute करेंगे? पता है. All partners which ratio? Old. 2:1. That is L, B and W. L, B, W. 5,200, 5,200 and 2,600 respectively. ठीक है. ले लो यहाँ पे डेबिट तो पार्टनर्स को क्रेडिट. बाय रिवैल्यूएशन 5,200, 5,200, 2,600 respectively. Okay. Don't even try to put anything else. Shutdown process still is to be done. Maintenance of capital is there. तो इसलिए ध्यान से करेंगे. सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर W को टच करेंगे. अभी हम किसको टच करेंगे? सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को शट डाउन करेंगे और देखेंगे कि उसको कितने रुपए देना बाकी है, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट कैसे दे रहे हैं? पार्टनर्स कैश में. तो चलो वो देखें कितना कैश इसको पे करना. W को शट डाउन करें. W's टोटल 24,600. W का टोटल इधर माइनस 2,100 तो इस कम्स टू 22,500. इसको इट इज टू बी पेड इन कैश. लेकिन कैश है तो नहीं, हमारे पास सिर्फ 2,000 है. जो भी अमाउंट चाहिए रिमेनिंग पार्टनर्स L और B लाएंगे टू मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू PL so that their capital, so doubling is there. Right now I will close here by W's capital account with 22,500. He will be paid complete amount in cash by remaining two. Okay. Nothing is by remaining two. In short, I mean to say,
जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग, ये तो 2000 को कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं। जितना पैसा इसको देना है वो बाकी के दो पार्टनर्स एल और बी लाएंगे इन सच अ मैनर दैट न्यू पीएल इज मेंटेन्ड। ओके, सो इन दिस वे I have given him cash, so no loan account of retiring partner here will be there. Retiring partner is closed. Even here cash will be closed. हम बिंदास यहाँ बैलेंस शीट में 2000 कैश लेके आएंगे, तभी ही हमको यहाँ पता चलेगा। दिस इज द ट्विस्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे कैश दे दिया, और बैलेंस क्या होगा 2 ही, बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है ये दोनों लाएंगे कितना, दैट वी विल कम टू नो नाउ। इन दिस केस what we will do, we will first close balance sheet and find out what L and B has to maintain as closing. That balance we will put in capital account and find out how much cash they will. Reverse process is to be followed. What is to be done? Reverse. So let us go for it. पहले balance sheet को बंद करें, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 70,000। 70 में से हम 23 माइनस करें तो टोटल कैपिटल कितना आ रहा है 47। प्लीज सी टू इट, हमने ऑलरेडी न्यू पीएल फाइंड किया था, न्यू पीएल 21:19 फाइंड किया था। तो अब दिस इज द पॉइंट वेयर दिस 47 तो क्लोजिंग कैपिटल होगी, बट न्यू पीएल में दैट इज 21:19 में पार्ट्स में ये लोग करेंगे। सो इफ यू डिवाइड दिस विल कम फॉर L 24,675, L फॉर B 22,325। सो यहां से हमको पता चला डिफरेंस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, कैपिटल कितनी बैठेगी 47। तो अब डालें हम L। प्लीज अगेन रिटायरिंग पार्टनर को पहले क्लोज कर देना, इसके बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए यहाँ पे बैलेंस लाके कैश का शट डाउन करना रिवर्स प्रोसेस में। नाउ 24,675, 22,325, नो मैजिक, प्योर अकाउंट्स। न्यू पीएल में हमने इसको क्लोज किया है, सो दिस विल नाउ दिस मीन्स यहां पे आएगा, इसका मतलब है कि ये क्लोजिंग है तो किधर आना चाहिए इन कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, एल के लिए आना चाहिए 24,675 और बी के लिए आना चाहिए 22,325। अब करेंगे टोटल और जो साइड डिफरेंस आएगा to cash by cash, okay, that will be reflected here, and finally our cash account must tally in this case. So when you close here, हम देखेंगे ना तो डिफरेंस दोनों का ये बाजू आएगा, दोनों का डेबिट ज्यादा है, इसका डेबिट का टोटल आ रहा है 37,875 और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 10,675 और सेकेंड पार्टनर का ग्रैंड टोटल आ रहा है 31,525 और इसका डिफरेंस आ रहा है 11,825। ओके, इस तरह से यहां लिखेंगे बाय कैश और कैश में जाएगा यहाँ पे 2L, ये लेगा 10,675, इसका आएगा 11,825। This way, this side total comes to 24,500. This side total also comes to 24,500. Finally, our cash account tallies. Okay, this cash is brought here and our cash account finally tallies. एक second. Okay, so sum is over. Only I put a reminder to you. Please see that you have practiced illustration number 22. Okay, we'll go for next question in next section. Thank you.